السلام علیکم. السلام. خیریت؟ 5 منٹ کا ٹائم ہے. ہاں نکال لو ٹائم ہے. اچھا یار لگا لو طاہر کو فون. جی نیکسٹ مسئلے پہ گفتگو ہونی ہے. اس نے ویڈیو بھیجی تھی مجھے. میں بھی 40 منٹ کام کرتا لگا لو. ہوں تو یاد میٹنگ کر رہا. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ہلو جی. ہلو ہلو جی انیس میں آ گیا لائن پر. جی بات کر رہے ہیں. ہاں انیس آ ہلو گیا آپ طاہر لائن بھائی. پر. جی میں لائن پہ ہوں. تو آواز امید آ رہی بھائی. ہے میری؟ ہلو ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی آواز. میرے حکم لائن پر ہیں جمشید علی قادری. آپ دونوں حکم آپس میں بات کرو پہلے. ہلو سر ان کو دیکھ لوں میں لائن پہ ہے یا نہیں ہے. ایک منٹ رکو. ہیلو امین بھائی. وہ بھی ہیں مفتی جی صاحب. جی مفتی صاحب ہیں لائن پر. ہے لائن پہ. ہلو مفتی صاحب جی لائن پہ ہے نا آپ؟ ہاں لائن پہ ہیں. جی جی. ہلو انیس صاحب ہیں. جی ہاں بتائیے. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. اچھا تو اب بتائیے ہمیں کہ کس موضوع پہ گفتگو ہوگی؟ جی موضوع ہے ابھی انہوں نے 10:30 بجے ایک کلپ مجھے سینڈ کی ہے. اس کلپ کے حوالے سے میں ان سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ارے تو آپ نہ بولیں. نہیں مجھے ابھی مجھے کو معلوم نہیں ہے نا میرے موضوع کا. اللہ اکبر. تو مطلب آپ نے حکم کو بتایا نہیں اپنے؟ ابھی بتایا نہیں. چلو بتا کوئی بات نہیں. انہیں بتانا تو بتائیں. آپ بتائیں. جی بتائیے. ابھی ایک ویڈیو سینڈ کی تھی تو اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے ایک کوشچن کرنا ہے, سوال کرنا ہے. اس سوال کا مجھے جواب چاہیے ان سے. اس ویڈیو میں کیا ہے؟ اس ویڈیو کی بابت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دیوبندی وہابی نے جو ہے مسئلہ کے بریلویت قبول کر لیا اور وہ عالم تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو سوال آپ کو ان سے مناظرے ہوتے ہیں. ہاں ان سے مجھے سوال کرنا. مناظرے ہوتے ہیں. ہاں یہ مناظرہ ہوتا. دیکھو ارے بھائی بات سنو. اگر اس آدمی نے بریلیت چھوڑ کے دیوبندیت چھوڑ کے بریلیت میں داخل ہو گیا تو یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے نا. طاہر بھائی سے کیوں کرو گے آپ سوال؟ طاہر بھائی نے سینڈ کری نا کہ تو سینڈ تو ان کو کسی نے کی ہوگی. تو جس ہاں تو طاہر بھائی نے مجھے سینڈ کری ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس کے پابند ہیں. اس کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے اس بھی آدمی جب کسی چیز کو سینڈ کرتا ہے یہ کون سا اصول ہے یار اصول ہے بھائی. یہ مجھے ایک سوال کرنا ہے. ارے تمہاری ہمت پست کی پڑ رہی ہے یار. عجیب بات ہے یار. ارے یار تو وکالت کرنے آتا جمشید قادری یا ان کو یا حکم بننا آتا؟ مجھے یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیسا آدمی آ گیا یہ مناظرے قابل نہیں ہے. اب مناظرے کے قابل تیرے کہنے سے کیسے؟ اب مجھے جواب چاہیے. میں نے ایک سوال کیا, تم نے ابھی مجھے کہا تھا کہ نیکسٹ موضوع پہ بات ہوگی, تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایک ویڈیو کی وساطت سے میں سوال کروں گا. بات کیا ہے؟ پہلے بات سنو. بات یہ ہے کہ جو ویڈیو تم نے بھیجی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے بات کرنی. اس ویڈیو کے حوالے سے بات کرنی مجھے. یہ ویڈیو بھیجی, تم نے دعویٰ کرا ہے کہ ایک بریلوی نے ایک دیوبندی نے مسئلہ کے دیوبندیت کو چھوڑ کر کے بریلویت کو قبول کیا ہے. تو یہ دعویٰ سچا ہے تمہارا؟ یہ دعویٰ سچا ہے تمہارا؟ نہیں انیس بھائی اس سے معلوم کرو. چلو میں ہر طرح سے تیار ہوں. انیس بھائی ان سے یہ کہو کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. تمیز کے دائروں میں بات کروں گا. بد اخلاقی اور بد کلامی بالکل نہیں ہوتی. میں تمیز کے دائروں میں بات کروں گا. چلو رجوع کرتا ہوں. میں رجوع کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. آپ اس ویڈیو کی وساطت سے بات کیجیے. کس موضوع پہ بات کرو گے؟ اسی موضوع پہ بات کرنی ہے مجھے. انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے. اس ویڈیو میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مسئلہ کے دیوبندیت کو چھوڑ کر کے ایک عالم نے بریلویت کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے جی تو ان کا نمبر دے دیں گے طاہر رضا صاحب, ان سے بات کر لیں گے. کوئی بات نہیں. ایک منٹ جاؤ انیس بھائی. جی انیس بھائی جی دیکھیے یہ مفتی ہے اور عالم کی یہ شان نہیں ہوتی. عالم کو اتنا معلوم ہوتا ہے جب اس کو درس سکھایا جاتا ہے
तो उसको ये बताया जाता है कि अज़्व जवाज में जब भी फतवा लगता है तो असल पे लगता है, नकल पे नहीं लगता। तो ताहिर भाई ने उनकी वीडियो भेज के नकल किया है। अब आपको इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब है मेरे पास। जवाब दे दूं? खामोश रहिए, जवाब दे दूं? खामोश करो यार। आप मेरे हकम को इस तरह से टॉर्चर नहीं करते। आप में और मेरे हकम में फर्क है। मेरे हकम बेचारे गैर आलिम है और तुम आलिम हो। मेरे पास भेजिए रिकॉर्डिंग और ऑडियो, मैं तो बेफिक्र नहीं करा इस बात का कि मैं बात करूंगा। नहीं, क्यों घबरा रहा हो तुम तो अकाइद के हर मौजू पे बात करने के लिए मुझसे तैयार हो, तो मेरा ये सवाल तुम्हें घबरा क्यों रहा है? जो तुम्हारे मेरे मौजू हैं चुनो, वो उन पर बात करेंगे। अरे यार, इस मौजू पे तुम्हारी क्यों हिम्मत पस्त हो रही है? तुम्हारी हिम्मत पस्त हो रही है। तुमने जो मेरे पास भेजी है वीडियो के हवाले से मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। ये एक काम करे, तुम हकम बन जाओ। ये जो आया ना, ये बेचारा ये तेज कादरी, ये जवाब दे दे। मेरी बात सुनो, ये बड़बड़ की दुकान जो है। इस भाई बताओ मुझे, मेरी क्या गलती है बताओ। इनका चैलेंज था कि अकाइद के हर मौजू में बात होगी। मेरे पास हाँ, आपने मुझे वीडियो भेजी, क्यों भेजी भाई? मुझसे बात नहीं कर सकते। एक मिनट मौजू बात नहीं करेंगे, जो मौजू इनके मेरे। चलो उनसे बात हो जाएगी। ना, अरे इन्होंने ना अभी यूँ समझ लो कि पहले अभी इन्होंने एक मौजू डाला था कि ऐसा अब्दुल वहाब नजदी के बारे में बात होगी। मैंने मना कर दिया, मुझे मंजूर नहीं है अभी फिलहाल। मैं भी तो कह सकता हूँ एक न्यू मौजू के बारे में। मुझे ये जो वीडियो भेजी इन्होंने, एक तरह से ओपन चैलेंज कर दिया मुझे। तुमने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने नहीं कहा तुमसे। अब यार ये क्या बात हो गई? तुम जवाब देने की हिम्मत है नहीं? रखो फोन। ये राय फरार की बातें हैं। ये राय फरार इख्तियार न करिए, जमा रहूंगा शाम तक। तुम जानते रहो मुझे। मेरा अकाइद की बात चल रही है, अकाइद का झगड़ा। वीडियो जो तुमने भेजी है ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक सच है? इसमें सदाकत और हक्कानियत है या नहीं, ये बताओ मुझे। रुको। अरे मुफ्ती साहब। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं रसन बरकाती 14 साल देवबंदियत में रह करके आया, मैं 8 साल रह करके आया, और मुझसे बात करो। अस्तगफिरुल्लाह, ये दावे तुम्हारे झूठ हैं, बातिल हैं, फैब्रिकेट हैं। जलालुद्दीन यहाँ आए थे, आप बात सुनो मेरी, बात सुनोगे मेरी? अनीस भाई देखो, इनकी मैंने बात सुनी, ये मेरी नहीं सुन रहे। अनीस भाई इनको मना करो, अब मेरी सुने। जलालुद्दीन यहाँ आया था, बहुत दलील और कुचवा होकर गया है। अब बात सुने, बात नहीं सुन रहे अनीस भाई। जलालुद्दीन यहाँ से कुचवा और जलील होके गया है, और उसकी रुसवाई की जहाँ और बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये भी थी कि उसने झूठ बोला था कि मैं मज़ाहिर से फारिग हूँ। मैंने साबित कर दिया कि मज़ाहिर का मुंह भी नहीं देखा उसने, मज़ाहिर में घुसा भी नहीं, और ऐसे आदमियों की एंट्री भी नहीं। ये बताओ अनीस, हमारा झगड़ा तुम्हारा अकाइद का है या इसका ऑडियो का झगड़ा है? ऑडियो अकाइद से मुताल्लिक है। अनीस भाई इनसे कहो, अकाइद से मुताल्लिक अगर साबित न कर दिया मैंने तो नाम तैयार नहीं। क्या करोगे? देवबंदी कितने तौबा कर तो बताओ, वीडियो जो भेजी है वो अकाइद से पूरे तौर पर मुताल्लिक है, अकाइद से मुताल्लिक है, ये बताओ। वीडियो के हवाले से मेरा सवाल है, जवाब देने की हिम्मत है तो बोलो, बात आगे बढ़ेगी, वरना तो बात खत्म करो। आपने वीडियो भेजी है मुझे, उस वीडियो के हवाले से मुझे एक एतराज है, उस एतराज को रफा दफा कर दो। तुमने भी तो भेजी मुझे। हाँ, तुमने भी तो मुझे वीडियो भेजी है, मैंने तो मुतालबा नहीं किया तुमसे कि वीडियो बात करूंगा। ये राय फरार की बात है मुफ्ती साहब। मेरा तुमने जवाबी कार्रवाई में मैं इस वीडियो के हवाले से बात करता हूँ। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है लंबे लंबे दावे करते हो वैसे फेंकने के लिए। रुको टाइम नहीं, रुको, ये हकम बना के लाए, हकम से बात करने दो। अनीस भाई मेरी बात सुनो एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ। अनीस भाई सुनिए, पहली बात मेरी सुनिए कि इन्होंने ये झूठ बोला कि जलालुद्दीन साहब जो वहाँ छुपा के भागे, खुदा की कसम ये जलालुद्दीन साहब के सामने ही नहीं आए, घर से नहीं निकले बाहर। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जलालुद्दीन मेरी मस्जिद में आया, जलालुद्दीन मेरी मस्जिद में और जलील होके गया, रुसवा होके गया, और उसने दावा किया था कि मैं मज़ाहिर से फारिग हूँ। मैंने इस दावे की धज्जियां उड़ाती है और दलाइल के साथ, क्योंकि मेरे पास मज़ाहिर उलूम के छोटे बड़े सब तरह के साथी हैं। ये तुम झूठ बोलते हो तालुम देवबंद को बदनाम करने के लिए। अब बताओ, मैं बात शुरू करूँ?
अबे खबीस हो, कुल्ला परस, नालायक, जाहिल। अबे ये हकम, तू हकम है? हकम ऐसे बोलते हैं? तो हकम ऐसे बोलते हैं? और नालायक, तू पहले हकम के उसूल जवाबी ठीक का। खाना खा रहा हूँ। मैं बात करनी नहीं करनी है, बता। बात करनी नहीं करनी, ये बता। बंद कर हकम इतनी बोलने की किसने यार कर दिया यार? ये बड़ा अजीब आदमी लगे मुझे। तू है तू, तेरे चूल्हे हिला दिया मैंने, तुझे पका दिया, तेरा दिमाग चल गया मेरे खौफ से, मेरे खौफ से तेरा दिमाग चल गया। तुम बोलते रहो, इन्हें बुलवाओ, ताहिर को बुलवाओ, ये है बोलने के लायक। अबे वीडियो का जवाब दो। हेलो मुफ्ती साहब, एक मिनट चुप हो जाए। हाँ अनीस में तुम्हारा हमारा जो इख्तिलाफ है काय का अकाइद का है नहीं। हाँ अकाइद का है। तो अकाइद का बात होगी, वीडियो तो इन्होंने मेरे पास भेजी है, मैंने तो नहीं कहा कि वीडियो बात करूंगा मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अनिल भाई, अब मेरी बात सुनिए। आपने जो ऑडियो भेजी है ना, जैसे आपने हाँ वो अकाइद से मुताल्लिक है, बरेलवी बन गया है। हाँ वो अकाइद से मुताल्लिक है, इनको 1 मिनट के लिए बस, कोई दिक्कत वो अकाइद से मुताल्लिक है वीडियो। तो उसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो अकाइद से मुताल्लिक है। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है वीडियो की विस्तारत से कि अहमद रजा के बारे में इनका क्या अकीदा है, मुझे ये बताएं। अहमद रजा की बात इनके लिए हुज्जत है जी। अरे अहमद रजा की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं, ये बताओ। नहीं हुज्जत है। तुम्हारी नानी मर सकती है। अहमद रजा की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं, ये बताओ, दावा करो। अनिल भाई मेरे अरे दिया है, इख्तियार में पहुंच गया। अनिल भाई एक और बरेलवी का खून आ रहा बेचारे का पिटने के लिए, जल्दी बोल। लैन पे ले लो, लैन पे ले लो। ये दलील करो, बोलो। अहमद रजा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, बताओ। करते क्यों हो यार? अहमद रजा के तुम गुलाम हो, क्या दावा है तुम्हारा? अहमद रजा के बारे में तो तुम्हारा अकीदा है, बताओ क्या अकीदा, बताओ। गुलाम हो तुम तो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पर, वो भी सबूत दे दूंगा। आप अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को वही मानते हैं जो तुम्हारे कश्मीरी मुजद्दिद ने अपनी फतवा कश्मीरी में। ये हकम है अनिल भाई, इनको टोको। हकम जो है कभी भी अपने फरीक को जो है टिप्स नहीं दिया करता, ये टिप्स दे रहा, ये खबीस की औलाद टिप्स दे रहा। ये इसे हकम बनने का पता नहीं है, जाहिल को डटकू, ये हकम बनने आया, टिप्स देना आया। और हकम हो चूतिए, हकम नालायक, खबीस, डूब के मर जा, जन नजराने चाट के मर जा। ओ बिदती, इसे हकम को तमीज नहीं है, टिप्स दे रहा है यहाँ। कल जो अनीस भाई मुझे गुस्सा आया था, इसीलिए आया था। ये हकम बनने के उसूल पे अमल करता, लेकिन ये टिप्स देने लग गया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में। इसकी खबासत देखिए, बदबातनी देखिए, इसकी बदतीनती देखिए। अनीस भाई इधर चुप करो, सालों को, इसे नालायक को, खबीस को, जाहिल को। ये टिप्स देना आया, हकम टिप्स दिया करता है, हकम दोनों तरफ की रियायत करता है। कैसा हकम है ये भाई? इसे गंजा करवाओ, इसे गंजा करवाओ। हकम को कहा का हकम है टिप्स दे रहा है यहाँ। अबे ये बताए, अबे अहमद रजा के बारे में मैंने पूछा इससे, ताहिर रजा से, तो ये बीच में ये क्यों कह रहा है कि कश्मीर ये इधर उधर क्यों ले जा रही है बात, टिप्स क्यों दे रहा है? तू ही कर ले बात, 1 मिनट। ताहिर रजा तू खामोश हो, ताहिर रजा तू हकम बन, अब तू खामोश रहे, मैं जमशेद की रज्जा उड़ाता हूँ। चल अच्छा आजा बता अहमद रजा के बारे में क्या तेरे आजा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ इसे मैं तुमसे बात कर रहा, काट फूल काट, जल्दी फूल काट। तुम दोनों चुपो, पहले दोनों चुपानी इसमें जी। 2 मिनट, एक फरीक बोलेगा तो वो दूसरा चुप रहेगा अपनी अपनी बारी में, या वो बोलेगा दूसरा वाला बोलेगा तो जो बोल चुका वो चुप रहेगा। 2 मिनट बात सुनेगा, अगर बीच में कोई एक दूसरा बोला तो जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी, ऐलान कर दिया जाएगा कौन शिकस्त का। जी चलो कोई बात, ठीक है। मौजू इन्होंने चुना है कि हमारा क्या अकीदा है, इस मौजू पर बात होगी और मौजू कोई नहीं भाएगा। अहमद रजा वाला मौजू रहेगा कि हमारे अलग मौजू, हम अहमद रजा को क्या मानते हैं, ठीक है। इससे अगर कोई भागा तो शिकस्त होगी। इस्लामी की तो मैं फौरन ऐलान कर दूंगा इसमें, वीडियो की मेरा भी काम है जिसका ठीक बिल्कुल ओके, ठीक है। चलो तो हाँ जमशेद कादरी, मैं वो फौरन ऐलान कर दूंगा जिस बोला बीच में, तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा, तुम्हें भी ठीक है।
हाँ बोलो। अनीस ठीक है, चलो जी मुफ्ती तैयब दावा करो अपना, तो मुफ्ती तैयब बोलो। हाँ जी, इन्होंने ताहिर रजा ने मुझे एक वीडियो भेजी है और उस वीडियो के विसातत से मुझे जो है तुम चुप जाओ। वीडियो की विसातत से मुझे ये कहा है इन्होंने कि एक देवबंदी आलिम ने मसलके बरेलियत को कबूल किया है। तो मेरा इनसे ये कहना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल फैब्रिकेट बात है। मुझे बोलने तो 2 मिनट मेरी बारी है। ये तो बिल्कुल मजहूल बात है, बिल्कुल लायानी और फजूल बात है, क्योंकि अहमद रजा खुद मुस्तफा रजा कादरी की किताब है जो अपने अब्बा के अल्बूब मलफूजात उसने जिक्र किए हैं, सफा नंबर 36 है, मैं दिखा रहा हूं। उनका है अहमद रजा का इस बारे में कहना कि वहाबिया के लिए दुआ फजूल है, सुम्मा ला यऊदून, उनके लिए आ चुका है, वहाबी कभी लौट कर नहीं आएगा, और जो हिदायत पा जाए वो वहाबी न था, हो चला था। अब मुझे ये बताइए, अहमद रजा इस बारे में ये दावा कर रहे हैं कि वहाबी देवबंदी ये तो कभी लौट कर आ ही नहीं सकता। तो तुम्हारा ये दावा इस वीडियो की विसासत से कि एक देवबंदी ने जो है बरेलियत को कबूल किया, ये कैसे दुरुस्त हो सकता, मुझे बताइए। चलो चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये कहा कि अहमद रजा खान पारसी बरेलवी ने ये कहा है कि एक वहाबी और एक देवबंदी लौट के फिर के आ नहीं सकता। ठीक है, तो जनाबे मन शायद आपने किताब को ठीक से नहीं पढ़ा। हम तमाम देवबंदियों को काफिर नहीं कहते, हम उसको काफिर कहते हैं जिसके ऊपर मन शक्का फी कुफ्र ही वाज़ा भी फकत कफर का फतवा लगा हो, पूरी तरीके से इन 4 अकाबिरों को जानता हो और पूरी तरीके से इनको अपना मुजद्दिद और अपना आलिम मानता हो। ठीक है, हम उनको देवबंदी और उनको वहाबी कहते हैं। जो शख्स गलत फहमी के दौर पर और जो नासमझी के दौर पर देवबंदी में दाखिल हो जाता है, जमात में चला जाता है, उसको हम गुमराह कहते हैं। और ऐसे गुमराह जब देवबंदियत को लात मार के करके बरेलियत में दाखिल होते हैं, ये बात उसके ताल्लुक से है। इतना तुम्हें अकल नहीं है, इतनी तुम्हें तमीज नहीं है। अब दूसरी चीज, वहाबी बनता ही जब वो पूरी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, और देवबंदी आलिम बनता है जब है उसको इन अकाबिरों की किताबों के बारे में ना मालूम हो। और आज की तारीख में बहुत से आलिमों को इन अकाबिरों के बारे में नहीं मालूम, इन अकाबिरों की किताबों को नहीं मालूम। सैकड़ों हाफिज आपको दिखा सकता हूँ दारुल उलूम देवबंद में, और सैकड़ों आलिम भी दिखा सकता हूँ जिनको इनकी कुफरिया इबादतें नहीं मालूम। और मैं खुद नमूना हूँ, 8 साल मैं खुद देवबंदियों के साथ रहा, मैं अमीर भी बना, मैं जमात में भी गया, लेकिन जब मुझे इनकी किताबें और इनके अकाबिरों के बारे में पता लगा, मैंने इनको लात मार के अपना तो वक्त हो गया, अब मेरी सुनो, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब सुनो, इस वीडियो पर बात चल रही है और उस वीडियो में जिस आदमी के मुतालिक कहा जा रहा है कि उसने देवबंदियत को छोड़ करके वहां वो बरेलियत को कबूल किया है, उसके बारे में तो खुद वीडियो के अंदर जो है मेंशन हो चुका है, वाज़ेह हो चुका है कि उसने जो है, तुम जैसा कि तुम कहते हो कि उसको कुफरिया बातें मालूम हुई जिसकी वजह से उसने जो है देवबंदियत छोड़ी और इसको बरेलियत को कबूल किया है। लिहाजा यहाँ तुम्हारी ये तस्रीह नहीं चलेगी, ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, ये तस्रीह नहीं चलेगी। वो तुम्हारे अपने ज़ोम में इस वीडियो में क्या था, वहाबी ही था, वो वाला देवबंदी था जिसको कुफरिया बातें मालूम है तुम्हारे अपने ज़ोम में। हालांकि कुफरिया बातें हमारे अकाबिर ने बिल्कुल नहीं कही, तुम उसके मुतालिक कहते हो। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो एक लायानी बात हो गई। यहाँ अहमद रजा ने जिसको कहा है, ये वही आदमी है जिसके मुतालिक तुम दावा कर रहे हो कि वहाबी जो है लौट कर नहीं आएगा। तो वहाबी लौट कर नहीं आएगा का मतलब ये है कि वो पहले ही यानी इनके ज़ोम में वो बरेलवी था, तो यहाँ तो इस वीडियो में बरेलवी बन गया, वहाबी देवबंदी थोड़ी बन गया। अनीस भाई सुन रहे हो जी? सुन रहा। हाँ, वहाबी देवबंदी वो बरेलवी थोड़ी बन गया, वहाबी देवबंदी बरेलवी था, वो बरेलवी ही बन गया। तो हमारा कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हो गई कि कोई भी देवबंदी आदमी बरेलवी बन ही नहीं सकता। या तो ये गलत बात है कि तुम्हारा दावा गलत है, इन दोनों में से एक को गलत करो। टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया मुफ्ती साहब। देखिए जनाबे मन, ये तमाम ताबेन सुन लेंगे कि मारे घुटना फूटे सर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहली टर्न में कहा कि वहाबी जब बन जाता है तो उसको वहाबी तब कहा जाता है वो पूरे तरीके से वहाबियत के अंदर शामिल हो जाए। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में तौसीफुर रहमान, मौलाना जर्जीस, मौलाना तालिबुर रहमान, क्या ये बरेलवी बन सकते हैं? नहीं, ये पूरी तरीके से बहके हुए हैं, पूरी तरीके से हराम खो रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आला हज़रत ने फरमाया वहाबी कभी भी नहीं फिर सकता।
اور الحمدللہ میں آج کی تاریخ میں وہابی کو چھوڑیے دیوبندی کے اتنے گمراہ دکھا دوں گا کہ جن کو یہ جماعت میں پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور 90% میں 60% ایسے لوگ ہیں جو بیچارے گمراہی اور ناسمجھی کے طور پہ دیوبندیت کو اختیار کرتے ہیں صرف ان کی ٹوپی اور پاجامہ دیکھ کے. اور جب ان کو پتہ لگتا ہے اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی کتاب کے بارے میں، تہذیب الناس کے بارے میں پتہ، اور شیعہ کے بارے میں، براہین قاعدہ کے بارے میں، حفظ الایمان کے بارے میں جاتی ہے، اس کے نبی جو باقی رہی ہے تو پلٹ کے آتے ہیں، ایسے مسئلہ لاکھ مارتے ہیں. وقت ہو گیا آپ سنو میری بات یار، پھر وہی والی بات ہو گئی لے دے کے پرنالا وہیں آ کے بہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہاں بولے 2 منٹ ہو گئے تھے. اب چلے کیسے ہو گئی تیرے کہنے سے؟ تو یہی تو کرتا ہے. اب وہ وہابی ہوا ہی کہاں؟ اب وہ وہابی کہاں ہوا؟ تیرے ملبوس کے بقول وہ وہابی کہاں ہوا یہ بتا دے. اب ارے ایسے کیسے شکست ہو گئی؟ تیرے کہنے سے ہو گئی شکست؟ ایسی بڑبڑاتا رہتا. دونوں کو اڑاؤں گا دونوں کو. بات سنو بیچ میں نہ بولا میں. بات سن بات. ابھی 1 منٹ نہیں ہوا اس میں. 1 منٹ کیا 2 منٹ ہو گئی. یہی تو تم جھوٹ بولتے ہو ایسی شکست. اب تمہارے خلاف بات آنے لگی، تمہاری دھجیاں اڑنے لگی. بولو 2 منٹ ہو گئی. 2 منٹ ہو گئی. اب سنو میری بات. اب سنو میری بات سنو. مجھے بولنے دیا جائے. گھبراؤ مت. ارے انیس بھائی مجھ سے کہو کہ بولو مفتی طیب. ارے انیس بھائی مجھ سے کہو کہ بولو مفتی طیب. سنو اب میری بات سنو. انیس بھائی اب میری بات سنیں. 1 منٹ میں سوال. انیس بھائی میرا 1 منٹ 30 سیکنڈ ہوا تھا، یہ اس کے بیچ میں بول پڑے. بیچ میں بول گئے. اور عوام فیصلہ کر لے گی. جہاں سے میری بات شروع ہوئی وہ ٹائم عوام دیکھ لے گی. اور تم بھی دماغی کر رہے ہو. میری بات سنو. یہ بول گیا ان کی شکست ہو گئی. میری بات سنو. شکست ایسے کیسے ہو جائے گی؟ اب ڈر رہا ہو، بھاگ رہا ہو، تم راہ فرار اختیار کرتا ہو. مجھے 2 باتوں کے جواب چاہیے جلدی سے. کیا بولوں یار؟ رائے فرار کو اختیار کر رہا ہے، اور جب میں نے بات کی نسیں دبا دی تو تم نے بیچ میں ٹوک دیا مجھ کو. ارے میری بات سنو. بیچ میں کہاں ٹوکا میں نے؟ پورا ہونے پر ٹوکا. کتابوں کے کتابوں میں مت جا. پہلے اپنی کتاب سے تو پیچھے چھٹا لے. پلفوس سے تو پیچھے چھٹا لے. ارے انیس بھائی اعلان کرو. انیس بھائی اگر تم بھائی ایسے کیسے اعلان کر دیں گے؟ اعلان تو کرے گا، تیرا اعلان معتبر نہ ہے. چل بات سن. شکست ایسے کیسے ہو جائے گی؟ میری بات سنو. مصطفیٰ رضا قادری کی کتاب ہے المنصور، جس میں احمد رضا کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ وہ آدمی تھا اور بات یہ ریکارڈنگ ہے. یہ اصول طے ہوا تھا کہ جو بدتمیزی کرے گا. ارے نہیں یہ بدتمیزی آپ نے کری ہے. جھوٹ بول کر کے. میری بات سنو سامعین حضرات. احمد رضا کے حوالے سے جب ان کی پکڑ ہونے لگی، سامعین حضرات جب ان کی دھجیاں اڑنے لگی، جب ان کے عقیدے پہ لات لگنے لگی، تو اب یہ باتیں بنا رہے ہیں، یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ طرح سے جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شکست ہو گئی. کیا ایسی شکست ہو جاتی ہے؟ بات انہوں نے میری سنی نہیں. میری بات ابھی تک سنی نہیں ہے انہوں نے. میری بات سنیں، اس کے بعد یہ فیصلہ لیں. اس کے بعد ارے بالکل تمہیں نا صحیح کر کے چلا دوں گا میں، بڑھیا کر کے. تم جانتے نہیں ہو مجھے میں کون ہوں. احمد رضا کے متعلق تمہارا نظریہ بالکل جارحانہ ثابت ہوا. احمد رضا تمہارے اپنے عقیدے سے کافر، اور احمد رضا کی عبادت سے تم کافر. احمد رضا تمہاری دھجیاں اڑا گیا اور تم نے احمد رضا کی دھجیاں اڑا دی. اور جیسا کہ یار خان نہیں بھی نے لکھا ہے کہ جو اپنے علماء کی مخالفت کرے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے. لہذا تم رسول اللہ کے بھی باغی ہوئے. میں اسکین لگاؤں
मैं तू हवाला पक्षपात कर रहे हो, हवाला दू हवाला हवाला दू हवाला दू हवाला दू हवाला दू। पहले 1 मिनट खामोश रहो। हवाला दू हवाला दू। फोन रख दो, अब आवाम फैसला करेगी। हाँ, आवाम फैसला करेगी। खून रख दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की, खून रख दो। हाँ, कूड़ा करो। तुम्हारा यही एटीट्यूड होता है। जब कोई अहले आदमी पर चला कर लगता ना तो भागते हो तुम दबा के तुम। और ये बस ये बातें सीख रहे। किससे किससे का ऐलान हो, कैसे किससे का उड़ा दूंगा नचिए। हाँ, बिल्कुल हमारा हकम चुप था तो तुम क्यों बोला? ऐलान क्यों नहीं करते? हमारा हकम चुप था, हमारे हकम है अनीस भाई, ये चुप थे तो तुम क्यों बोले? इन्हें छुपाओ उन्हें। हमारे हकम चुप थे, खामोश थे, तुम क्यों बोले? तुम क्यों बोले? अब हम क्यों चुप हैं? जवाब दो, जवाब दो। मैं हकम हूँ। बरेलवी बना। अहमद रजा की ये इबारत वाज़ेह कर रही है मलफूज के अंदर कि बरेलवी बना, देवबंदी बरेलवी बन ही नहीं सकता। अहमद रजा ने कह दिया सुम्मा ला यऊदून, बरेलवी बन सकता है। समझ में आ गई? देवबंदी बरेलवी नहीं बन सकता, देवबंदी बरेलवी नहीं बन सकता। अहमद रजा की इस इबारत से वाज़ेह हो गया। अहमद रजा ने मलफूजात के अंदर कहा है कि जो वहाबी होगा वो लौट कर आ ही नहीं सकता। लिहाजा इस वीडियो में इनका ये दावा कि एक देवबंदी ने बरेलवियत को कबूल कर लिया बिल्कुल बातिल हो गया। इसलिए कि इनका बाबा कह रहा है कि जो वहाबी होगा वो जो है बरेलवियत में नहीं आ सकता। समझ में आ गई? हाँ, इसलिए वो बरेलवी तो हो सकता है जिसने बरेलवियत को कबूल किया, वो देवबंदी नहीं हो सकता। और इसके अंदर एक बात और है अनीस भाई, एक बात और है, ये बहुत गलत बात कह गया अहमद रजा। इसने दुआ का लफ्ज बोला कि वहाबी के लिए दुआ फजूल है और नीचे हिदायत का लफ्ज है, यानी दुआए हिदायत फजूल है, दुआए ईमान। अब मुझे बताइए इनके अपने जोन में जो होना चाहिए था। अबे सुन, भाग तो रहा है, भागना मत, खामोश हो, मैं कह रहा हूँ। अनिल भाई इसे चुप करियो, इसे चुप करो, दोनों को चुप करो, दोनों का मुंह बंद करूंगा अभी मैं, दोनों का मुंह बंद करूंगा अभी मैं। दोनों की बात लगाऊंगा। हाँ अनिल भाई। मुफ्ती साहब 1 मिनट चुप हो जाए। हाँ, मैं कोई बात सवाल कर रहा हूँ जरा इनसे। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये एक सवाल है मेरा, जैसे आप ये वहाबी कहते हैं, वहाबी का मतलब क्या है? वहाबी तो अल्लाह का नाम है। वहाब मैं आपको नहीं किसने बोला आपको? नहीं, वहाब अल्लाह का नाम अनिल भाई जी, अनिल भाई ये सवाल तुम मेरे जिम्मे कर दो, मैं कर लूंगा बाद में इस पे भी इनकी बात लगा दूंगा। 1 मिनट में अनिल भाई तुम खामोश हो जाओ। अनिल भाई जी, तुम खामोश हो जाओ। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। और ये मुनाजिर देवबंदी जो है हाँ, नहीं, वो एक सवाल कर बैठ गए तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है कि वो सवाल बाद में कर लें। अभी फिलहाल मुनाजरा चलता है तो इस मुनाजरे में हमारी बातें होने दें। शैतान तेरे पास नहीं है, पहले मुनाजिरी किताब पर उसके उसूल पर तू जानता करने लगता है। एक मिनट रुको अनीस भाई, आपने कुछ सवाल किया था उसका जवाब ले लो इनको। हाँ बताओ। हाँ चलो बताओ अनीस भाई। मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जो फिरका चला तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से चला। देखिए अनीस भाई, अहमद रजा ने अपनी किताब मलफूजात के अंदर ये बात की है। सुनिए अनिल भाई, सुनो, अनिल भाई नहीं बोलने देगा ये। अब मेरी सुने करने से कोई फायदा नहीं। अनिल भाई मेरी बात सुने, एक बात सुने। भाई अरे बात को पूरी सुनो ना। मियां तुम ये तो बताओ, तुम ऐलान क्यों नहीं कर रहे? ऐलान वैसी है, भाग रहा अनिल भाई, भाग रहा भाई। इसलिए यही बातें सीखी है तुमसे, मुनाजरा ना आता, मुनाजरे की टीम ना आती। दावे के साथ कहता हूँ ये उर्दू भी नहीं पढ़ सकता, ये उर्दू पढ़ के दिखा दो, उर्दू
ये उर्दू पढ़ के दिखा दे तो मैं तुझे 36 मारूंगा, 36 मारूंगा, 36 चपत ऐसे लगेंगे तू भूल जाएगा कुल्ले खाना। खून रखने के लिए कह रहा है, शक इसकी दलील है, इनको खामोश करोगे नहीं करोगे आप? इसकी दलील है। साहब अब खामोश हो जाए। हाँ मेरा एक सवाल है, जैसे वहाब तो अल्लाह का नाम है। अरे ये सवाल बाद में मेरे जिम्मे कर दो ना, मैं पूछ लूंगा, इस पर इतनी बात लगा दूंगा भाई। मालूम कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह ताला को वहाब के नाम से गालियाँ देते हैं। अरे यार इनको तो अरे इनके नजदीक कुछ नहीं है, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कुत्तों का कुरान नाजिल हुआ है, कुत्तों का कुरान, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुत्तों का कुरान। अनिल भाई कुत्तों का कुरान कहा है, इसलिए इस वाले सवाल मत करो, मुझे छोड़ दो, आप खामोश रहो। अच्छा चलो खामोश हो जाओ। हाँ खामोश हो जाओ। अब ये बताया मुझे कि अहमद रजा की इबारत में ये मौजूद है कि वहाबियों के लिए दुआ फजूल है, वहाबियों के लिए दुआ फजूल है। हैं? हेलो, भाग गए भाग गए इनकी ये औकात बरेलियों की, ये भाग जाते हैं, राह फरार इख्तियार करते हैं। और ऐसा है, ये वीडियो मंजर आम पर आनी चाहिए, इस वीडियो को डालो और कल को जो है जैसे यूट्यूब खोलूं सबसे पहले नंबर पे यही वीडियो आनी चाहिए, इनकी ये औकात है। देखिए अहमद रजा ने, बात सुन लीजिए अनीस भाई, अहमद रजा ने मलफूजात सफा नंबर 36 पर ये बात मौजूद है। अहमद रजा ने लिखा है, इरशाद पहले उन्वान डाला, उसके बाद ये बात मौजूद है कि वहाबियों के लिए दुआ फजूल है। इसमें आप दो बातें समझें अनीस भाई। पहली बात तो ये समझें कि इसने कहा वहाबियों के लिए दुआ फजूल है, सुम्मला या उर्दून वो लौट कर नहीं आ सकते। अब इन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले एक वीडियो भेजी थी जिसमें इनका दावा था कि एक वहाबी जो है उसने बरेलियत मसला कबूल कर लिया। तो मेरा इनसे ये कहना था कि जब वो वहाबी था तो तुम्हारे अहमद रजा के इस कौल के बकौल वो कैसे उसमें आ सकता? तुम्हारे अहमद रजा तो ये कह रहा है कि वो लौट कर आ ही नहीं सकता, और जो लौट कर आ जाएगा वो वहाबी नहीं होगा। जी वो अल्लाह वाला नहीं होगा। हाँ वो वहाबी नहीं होगा, यानी वो बरेलवी तो हो सकता, तो बरेलवी बनना है यहाँ तो इस वीडियो में तुम्हारे अहमद रजा के इस कौल से। अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये अहमद रजा ने कितनी बड़ी जो है नाइंसाफी की है और कितना बड़ा बहुतान बांधा है कि दुआ फजूल है, और दुआ से मुराद दुआए हिदायत। अब मुझे ये बताइए कि एक काफिर के लिए दुआए हिदायत क्या गलत है? नहीं अच्छी बात है भाई, उसके लिए नजात की मगफिरत की दुआ तो नहीं कर सकते एक काफिर के लिए। इनके अपने जोम में जिसको ये काफिर कह रहे हैं, काफिर के लिए दुआए मगफिरत तो नहीं कर सकते, लेकिन हिदायत की और उसके ईमान लाने की दुआ तो कर सकते हैं। जी तो इसका मतलब ये नबी से आगे बढ़ गया और इसने अल्लाह से भी आगे जो है बातें बोल दी। अल्लाह ताला ने तो फरमाया अपने इल्म अज़ली के मुताबिक कि जो है ये ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन ये क्या इल्म अज़ली रखता है? नहीं है? या इसका बाबा अहमद रजा आलिमुल गैब है जो इतनी बड़ी बात बोल गया कि दुआ फजूल है? इसका मतलब ये है कि अहमद रजा का भी कुरान से कोई लेना देना नहीं था। ये वीडियो मंजर आम पर लाई जाए और इस तरह से जो है इनका पर्दाफाश किया जाए। अहमद रजा भी बातिल है, उसकी बात बातिल, उसके मानने वाले बातिल, काफिर, कुफ्र पर मबनी। ठीक है। मेरा सवाल ये था ना, हेलो, हाँ मेरा सवाल ये था, जैसे ये वहाब तो अल्लाह का नाम है, बिल्कुल आपने ठीक बोला था, ये जवाब नहीं देंगे। अल्लाह ताला को इतनी गालियां देते हैं हर बार में, वहाबी गालियों के नाम से बोलते हैं, वहाबी मतलब 24 घंटे अल्लाह ताला को गाली देने पे लगे हुए हैं। इतनी दुश्मनी है अल्लाह ताला। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाबियों पे कुत्तों का कुरान नाजिल हुआ आज तक। अब तो वहाब तो अल्लाह का नाम है ना, वहाब अल्लाह का नाम है जी। तो फिर ये वहाब को अल्लाह ताला को कितनी गालियां देते हैं हर चीज में। जमशेद कादरी ने मना न करा, ना 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 ना, तो मैं यही का सवाल था ना, ये झूठ बोल जाते हैं। आपने मुझे खामोश करा दिया, मैं इनकी नाक इन्हीं की कटवाता ना अभी ना मैंने खामोश आपको अनीस भाई इसलिए कराया कि आप एक दुरुस्त बात कर रहे थे, लेकिन ये आपको उलझाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से मेरा मजमून भी उलझ रहा था। मैं इसीलिए तो कह रहा था ये मजमून मेरे सपुर्द कर दो। अब ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल आप नहीं दूसरे टाइम मैं दोहराऊंगा इनसे। इनकी बात में लगाऊंगा लफ्ज वहाब पे कि लफ्ज वहाब अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, वहाब अल्लाह ताला को कहते हैं। और ये अहमद रजा का कहना कि कुत्तों का कुरान नाजिल हुआ वहाबियों पे, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ अल्लाह, ये इतनी गंदी बात है कि इस गंदी बात के होते हुए अहमद रजा मोमिन हो ही नहीं सकता। कसम खुदा की मोमिन हो ही नहीं सकता। अरे अहमद रजा ने तो अल्लाह ताला को भी गालियां दी हैं, पढ़ो इसमें ही है फतावा रिजविया के अंदर मौजूद। ऐसी सख्त बातें कही हैं, तो क्या उन बातों के होते हुए
یہ مومن ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت تھانوی، ارے وہ عالی ظرف تھے، وہ عالی ظرف تھے. ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا دراصل وہ قول تھا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافی، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں 99 احتمالات ہے وہ کفر کے، اور ایک احتمال ہے اس کا ایمان کا. ایسا ہے اس کو کافر مت کہو. کیا فائدہ اگر وہ کافر ہے بھی، مت کہو اسے، دل سے اسے برا جانو، زبان سے اس کو مت کہو. بس یہ انہوں نے کہا ہے. اس سے ایک دن موجود رکھتے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اللہ تعالیٰ کو گالی کیوں دیتے ہیں وہاب کے نام سے؟ چلو وہ عبد الوہاب نجدی ہے، چلو ہم اسے مانتے ہیں. وہ وہاب اللہ تعالیٰ کے نام، ارے وہ تو خارجی ہے. ہماری کتابوں کے اندر المحند علی المفند میں اس کو خارجی لکھا. جی لیکن وہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نسبت سے اپنا نام رکھا ہے عبد الوہاب. وہ اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب. تو جو وہ خارجی ہے، وہ خارجی ہے. جی جی نہیں، اس کو نہیں، ہم اس کا نام نہیں لے رہا ہوں میں. اچھا جیسے یہ ہمیں بھی دیوبندی کو بھی تو وہابی کہتے ہیں. ہاں بالکل کہتے ہیں، ہمیں وہابی کہتے ہیں. تو ہم تو اللہ والے ہیں نا. بالکل اللہ والے ہیں. جی ہمارے لیے نام بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی کہ نام بھی ان کی زبان سے وہ نکلوا دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. میں تو وہی تو چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. جب آپ ہمیں خود اللہ والے کہتے ہو، میرا سوال تو یہ تھا ان سے، میں یہی تو سوال کرتا ان سے، آپ تو ہمیں خود اللہ والے کہتے ہو. کیونکہ میں نے کلپ سنا تھا، وہ جو ہے نا مولانا وہاں گئے جو مکے میں بیٹھتے مکی الحجہ جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ وہابی وہابی. انہوں نے کہا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں، اللہ والے کہہ رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے ہمیں. اگر وہابی کہہ رہے ہیں نا ہمیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں ناراض نہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والے کہہ رہے ہیں. کیوں جی؟ یہ بات مسئلہ. تو میں یہ بھاگ گیا لیکن کال کاٹ کے. چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ ویڈیو بنواؤ. ٹھیک ہے.